चैलेंज है वो तो आपने बताया पास में हमें कॉलेज इंश्योरेंस बनानी है, विच वी आर वर्किंग वेरी एट अ वेरी फास्ट पेस विथ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. SECP cooperates with us fully today. We are very happy to see the way they cooperate, especially on increasing the education of insurance in the country. और अब हमें ये इंशाल्लाह हेली कॉलेज इन लाहौर तो ऑलरेडी बन चुका है, और कराची में भी कराची यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट एक इस तरह का डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा. जबरदस्त. तो ये इंशाल्लाह हम अपने एंड नाउ आई हैव वर्कड इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिंस ऑलमोस्ट मोर देन प्लस 40 years, and I would like to concentrate more on developing imparting knowledge to the country. अब EFU को क्या challenges हैं अपने competitors से? आदम जी बहुत aggressive है, और अगर एक शेयर होल्डर देखता है EFU को भी, या रादर चलें शेयर होल्डर वैल्यू पे ठहर के आते हैं, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंट बिजनेस एरिया जिसमें कंपटीशन है, किस किस एरिया में कौन सा कंपेटिटर आपकी रात की नींद कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है? ईमानदारी से रात की नींद तो कभी हराम हुई ही नहीं है. अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है. I get good sleep, so the better. I always believe the more the competition, the more the awareness will develop. So I am very happy to see good professional companies are coming in the country. Like who? आप अपने competitors में admire किसको करते हैं? I admire IGI, I admire Askari Insurance, and of course Adamji Insurance has taken a big change now. There's change of ownership and change of management also. So that let us see how they will come up in the future. देखिए आदम जी इंश्योरेंस की ग्रोथ जो है ना उसमें गारंटीज बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज वो वॉरेन बफेट के मॉडल पे जा रहे हैं, वेयर ही थिंक्स के ऐसे बिजनेसेस होने चाहिए जो कैश फ्लोट फ्री में, रिलेटिवली फ्री में जनरेट करें. एंड हिज फेवरेट इज आल्सो द इंश्योरेंस सेक्टर. तो द रीजन वाई निशात ग्रुप है, उनके पास MCB है, निशात मिल्क है, मिल्स है, उमर फैब्रिक्स है, चुनिया है, बीजी खान है. तो उन्होंने जो एक्विजिशन किया आदम जी की, दैट इज बिकॉज ऑफ द शेयर कैश एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस के. उस कैश से फिर जो मजीद बेहतर इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकते हैं, एक्विजिशंस कर सकते हैं, तो वो उस मॉडल पे चल रहे हैं. डू यू फियर देम एट ऑल? Not really, not really. One, देखिए, I would say that one should run the company the way the shareholders or the board of directors want it to run. So if that is the way which Adamji wants to run it, it's very good for them. I'm very happy because everybody should do well. We will run EFU the way my shareholders and directors want it to run. And yes, free float is one of the very major aspects of running an insurance company. So we will concentrate more, like EFU is already concentrated. We have 3 companies whereas others don't, and we will hopefully be coming up with 2 more companies probably in another year's time. Travel वगैरह? No, this is purely for Takaful company. Islamic insurance products. Insurance product for family and for non-life. आपको इसका वो मिल गया है लाइसेंस? No, we have in the process of applying it now, because you see, unfortunately we were expecting a window operation to be allowed by the government, which unfortunately was not. रूल्स तो आ गए थे पिछले साल. रूल्स तो आ गए, लेकिन सर अपने to form another company doesn't take, it takes a long time, and especially a good company just doesn't apply and get it. We have to select our chief executives and go into a lot of detail. So unfortunately with this system, I was a little upset at it. If it was a window operation, अब तक आप कर भी चुके होते हैं. अब तक तो 10 कंपनी और आ चुकी होती है, and Islamic insurance would have been way ahead. गवर्नमेंट ने हमें बहुत लोग इसमें इसीलिए नहीं आते इंश्योरेंस में, कजवान इस्लामिक इस्लामिक बैंकिंग कितनी देर से फैल गई. अब हम मैच नहीं कर सक रहे, बिकॉज इस्लामिक बैंकिंग कह रहे कि हमें इस्लामिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, हम दे नहीं सक रहे. और वो 1 विंडो पे दे देंगे, जिसने DIB में या बैंक इस्लामी में अकाउंट खोल लिया, वो वहीं पे. अभी मुझे आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द गवर्नमेंट, व्हाई डिड दे नॉट अलाउ विंडो ऑपरेशन? व्हाट वाज अगेंस्ट इट? आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड. वंस अगेन बताते चलें कि 2 नई कंपनियां लाने का इरादा है EFU की जानिब से, दोनों तकाफुल बेस, विच मीन इस्लामिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एक ऑब्वियसली नॉन लाइफ और एक फैमिली इंश्योरेंस, जिसके लिए प्रोसेस में ये फंसे हुए हैं. एंड ऑब्वियसली टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस पर तो हम बात कर चुके हैं कई दफा. इट्स नॉट अ वेरी रोजी पिक्चर हियर इन पाकिस्तान. EFU में क्या वैल्यू नजर आनी चाहिए, या किस नजर से इन्वेस्टर को EFU की तरफ देखना चाहिए? अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे इसमें, ऑब्वियसली अगर कोई आदम जी में एक्सपोजर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसे बैंकिंग, सीमेंट, टेक्सटाइल एंड इंश्योरेंस इटसेल्फ, इन सब में
मिल जाता है एक्सपोजर को, आईजीआई में जाता है तो उसे नेस्ले के पानी की बोतल में एक्सपोजर मिल जाता है, उसको पैकेजेस में एक्सपोजर मिल जाता है, इंटरबैंक में, फाइनेक्स सिक्योरिटीज में। तो जो एक्सपोजर मिल रहा है, कंग्लोमरेशन ग्लोबल फिनोमेना है, आप कोई भी बड़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उठा के देख लें, ईएफयू क्या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू? As an investment avenue, I would say that EFU share is a good share. It will continue to perform well. It is being managed very well. We have a very good system of management, and we will concentrate on insurance, life, non-life. अब देखिए, EFU General owns 40% plus of EFU Life. The EFU Life does well, we get the advantage of it. And we are, I would say, we are first customer based. We are shareholder based second. I mean, at the end of the day, देखें, at the end of the day, आप कस्टमर बेस भी इसीलिए बढ़ाते हैं, उसकी सर्विस भी इसीलिए अच्छे देते हैं ताकि at the end of the day शेयर होल्डर के लिए जो वैल्यू है उस कंपनी में, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको बढ़ाएं। तो आज जो शेयर होल्डर है वो एक काफी, ही इज वेरी अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन द मार्केट। वो तो चाहेगा कि आप अपने फ्लोट को इस्तेमाल करें, कुछ एक्विजिशंस करें, कोई हंगामा करें मार्केट में। नहीं, हम समझते हैं वी आर वेरी कंजर्वेटिव फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। वी वुड रियली गो वेरी कंजर्वेटिवली, गो बाय द बुक एंड प्रोग्रेस ग्रेजुअली। अब देखिए बाकी सबको ग्रुप कंपनीज का बिजनेस कितना मिल जाता है सर? अपने लेट मी अगेन टेल यू सर कि ग्रुप इंश्योरेंस बिजनेस मिलता है, ग्रुप में लॉसेस भी हो सकते हैं सर। नो दैट्स ट्रू। वो तो आई मीन आई गेस वो किसी भी बिजनेस की ये शेयर होल्डर्स को आप क्या मैसेज देंगे? शेयर होल्डर को मैसेज यही दूंगा कि इट इज अ वेरी फाइन कंपनी, बाय द शेयर्स एंड कीप इट फॉर योर चिल्ड्रन। एक्सेलेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इनके कुछ चार्ट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। आज रफली 152 रुपए पर ट्रेड कर रहा है ईएफयू इंश्योरेंस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वॉल्यूम्स ऑब्वियसली इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी बिग फ्लोट। 154.80 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी आज इसमें 2 रुपए 80 पैसे का इजाफा देखा गया है, अप 2.8%। पिछले 7 दिनों में इट इज डाउन 4 रुपए 40 पैसे की कमी देखी गई है, विच इज डाउन टू लिटिल बिट। पिछले 14 दिन में देखें तो स्टॉक इज अप अबाउट 1%। इससे ज्यादा लंबे अरसे पर भी आपको लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि इन रीसेंट टाइम्स परफॉर्मेंस कैसी रही है। वंस अगेन प्रीटी मच 151 से लेकर 154 के बैंड में ट्रेड करता रहा है पिछले 30 दिन में। और अगर इससे ज्यादा अरसे पर जाएं, रादर इफ वी गो फॉर अ वेरी लॉन्ग रन, तो उसमें इट हैज एक्चुअली फॉलन इन द लास्ट 3 months। क्या अहम वजूहत हो सकती हैं इसकी? सर मैं आपको देखिए, द चार्ट्स वर शोड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग which probably if you compare with other charts, ये जो 6 महीने में बीच में एक जंप जो है एक ही जंप आया, बट आपकी जो क्राइसिस आई, दिस शेयर रिमेन वेयर इट वाज। दिस इज द सॉलिडिटी ऑफ दिस शेयर। मतलब कि अर्निंग्स को देखकर पहले क्वार्टर की इट जंप्ड अप टू ऑलमोस्ट 170 और उसके बाद जब ये मार धाड़ हुई है नॉर्थ ने, देन इट फेल बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन इट डिडंट फॉल मच, वही पुराने लेवल पे आ गया। बिल्कुल, आप क्राइसिस को देखिए, जून की क्राइसिस, जो 2 क्राइसिस आए पाकिस्तान में on the stock market, इसने सस्टेन किया। You will see that our shares remain exactly where they were, stock solid। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन जुमकावाला साहब कि वक्त निकालकर आप पावर लंच पर CNBC से गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाए, अपनी कंपनी के बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में हमें मजीद आगाही दी। एंड वी होप टू हैव यू हियर द डे आफ्टर योर announcement and your board meeting. I look forward to that, and I'm very happy to see the analysis which you all make nowadays, which is very heartening to note, because I like compeers to have a lot of knowledge on the subject that they are comparing. Thank you sir. जुमकावाला साहब once again बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट की मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल पावर लंच में इतना ही। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।